Okay, so we are going to start the chapter amides now. We have done with amines. The new thing which we are going to start is amides. So you need to keep remember, bacho, what is amide? Amide is like you should have this linkage. You should have this linkage. अगर आपके पास ये linkage होता है, it means कि ये amide का linkage है. ठीक है ना? यहाँ कार्बन के साथ आपके पास कोई कार्बन अटैच हो सकता है, और अगर नाइट्रोजन के साथ यहाँ हाइड्रोजन अटैच है, so this is the amide which is formed from ammonia. वो amide जो अमोनिया से बनता है उसमें यहाँ पर H होता है. उसके अलावा जो बाकी आपके पास एमाइड्स होते हैं वो ये भी एमाइड हो सकता है. फॉर सपोज अगर आपके पास कार्बन और नाइट्रोजन का बॉन्ड इस तरह से और यहाँ आपके पास अल्काइल रेडिकल लगा हुआ है, कोई भी कार्बन की चेन, तो ये भी एमाइड हो सकता है. एंड फॉर सपोज आपके पास ये है, नाइट्रोजन अटैच है और दोनों तरफ कार्बन की चेन है, तो ये भी आपके पास एमाइड हो सकता है. राइट, यू नीड टू कीप रिमेंबर कि ये सारे एमाइड्स हैं और यही वाला लिंकेज अगर प्रोटीन में प्रेजेंट हो तो उसको पेप्टाइड बोलते हैं. ठीक है ना? तो यू कैन से दैट सेम फंक्शनल ग्रुप in proteins called as peptide, right? Called as peptide linkage, right? This is the same one. Protein में भी यही होता है amide linkage, but क्यों वो peptide linkage कहलाता है. ठीक है बच्चों? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये अमोनिया से कैसे बनता है. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये अमोनिया से कैसे बनता है. तो the first one, it is from ammonia. How can we form it from ammonia? For this, you should have acyl chloride first. You should have acyl chloride. When acyl chloride is going to react with ammonia, it is going to form amide. It is going to form amide along with HCl. It is going to form amide along with HCl. All right, you can see this. For suppose अगर आपके पास है R C double bond O Cl, and if you are reacting it with ammonia, so it is going to form R C double O and H2 along with HCl. Right, this is what? This is nucleophilic substitution. This is what? Nucleophilic substitution. And you need to keep remember this कि ये आपके पास इस तरह से बनता है. तो अगर आपके पास यहाँ CH3 होता, it is CH3 C double O Cl, और अगर आप इसका रिएक्शन NH3 से करा देते बेटे, तो आपके पास क्या बनता? आपके पास बनता CH3 C double O NH2 plus HCl. You need to keep remember the type of this reaction. What is the type of this reaction बेटे? You can see this. This is actually what? आप यहाँ देख सकते हो कि NH2Cl को क्या कर रहा है? सब्स्टिट्यूट कर रहा है. NH2 यहाँ पर आपके पास क्या कर रहा है? CH2 को सब्स्टिट्यूट कर रहा है, और साथ साथ वहां जो आपके पास NH3 में जो H बचता है वो उस Cl के साथ मिलकर आपके पास आपस में रिएक्शन भी कर रहा है. तो आप एक तरह से कह सकते हैं कि NH3 यहाँ पर ऐड भी हो गया है और इसमें से एक Cl एलिमिनेट भी हो गया. ठीक है ना? तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन is known as addition elimination reaction. This is known as addition elimination reaction. इसको दोनों का नाम देंगे, addition elimination reaction. Addition भी हुई है, elimination भी हुई है. तो ये पूरा नाम है या फिर दो अलग अलग नाम? ये पूरा नाम है, addition elimination reaction. ठीक है? You can see this, the addition is on carbon and the elimination of chlorine over here, right? And you always need to remember the reagent over here. Reagent क्या use करेंगे आप? Reagent आपने यहाँ पर ammonia use करना है, and you need to keep remember that this ammonia should be in ethanol. Ammonia in ethanol, right? You need to keep remember ammonia is used over here in ethanol, and the condition is room temperature and pressure. The condition is room temperature and pressure. तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है. तो आप लोग AS में नहीं है तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि आपको रिएजेंट, कंडीशन और टाइप ऑफ रिएक्शन स्पेशली याद रखने हैं. आप लोग ऑलरेडी AS का पेपर दे चुके हो, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि इट इज इंपॉर्टेंट वन, राइट?
यस सर। सर ये एडिशन और एलिमिनेशन कैसे हुआ, ये रिपीट करना समझ नहीं आया। जी देखिए, आप कार्बन के पर आपके पास NH2 ऐड हुआ है, ठीक है ना, यस सर। और क्लोरीन आपके पास सबसे हटा है, यहाँ से निकला है, एलिमिनेट हुआ है, so that is why it is known as addition elimination, right? क्लोरीन तो NH2 से सब्स्टिट्यूट हो गया ना। You can call this substitution as well. तो फिर आप एडिशन एलिमिनेशन नहीं बोलेंगे, फिर आप सब्स्टिट्यूशन बोलेंगे खाली। और एक और बात, हमने पीछे अमाइन पढ़ा था और एमाइड में फर्क सी और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड का फर्क है ना। जी, आपके पास अगर कार्बन और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड वहां आ जाता है along with नाइट्रोजन, तो इट वुड बी नोन एज एमाइड। अगर सिर्फ NH2 है तो दिस इज अमाइड, राइट? ओके सर। Now the next one is you need to keep remember कि आपके पास amide amine से भी बन सकता है. The second one is you can form amide from amines. So if you have acyl chloride and the acyl chloride is going to react with amines, so it is going to form what? Amide. Amide बनाएगा and HCl बनाएगा, right? This is the same thing जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ. तो ये वही आपके पास वो पुराना वाला जो आपने पढ़ा हुआ है एमाइड लिंकेज ओ लेवल्स में, सेम वैसा ही लिंकेज है. फॉर सपोज आपके पास है CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, और आपके पास क्या है बच्चों? CH3 NH2, ठीक है ना? जब ये दोनों आपस में मिलेंगे, you need to keep remember that all the time acyl chloride remove acyl chloride remove Cl and amine remove its H. तो ये दोनों रिमूव हो जाएंगे. जब ये दोनों रिमूव हो जाएंगे तो क्या बनाएंगे बच्चों? ये HCl बनाएंगे. ये HCl बनाएंगे and the rest of the molecule combine together to form amide linkage. So you can see this, it is CH3 C double bond O and this is CH3 and N and H. तो ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे, right? This is what amide linkage, this one, right बच्चों? जी सर। यस सर। Any problem? नो सर। देन आपके पास जो है एस्टरिफिकेशन होती है. एस्टरिफिकेशन के हाइड्रोलिसिस हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड है, बट हमारे सिलेबस में ये वाली इंक्लूडेड नहीं है, एमाइड वाली. तो ये बॉन्ड तोड़ना, इसकी हाइड्रोलिसिस हमारे सिलेबस में नहीं है. इन आवर सिलेबस वी जस्ट हैव अ हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टरिफिकेशन. सो इफ यू टॉक अबाउट हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टरिफिकेशन, तो देखें एस्टरिफिकेशन की बात मैं इसलिए यहाँ पर कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास एस्टरिफिकेशन का जो लिंकेज होता है वो भी इसी तरह का होता है. तो फॉर सपोज अगर आपके पास एस्टर बनता है, तो आपके पास एस्टर कब बनता है? जब आपके पास एसाइल क्लोराइड के साथ क्या हो? एसाइल क्लोराइड के साथ अगर आपके पास फॉर सपोज हाइड्रोक्सिल हो, तो तब आपके पास क्या बन सकता है? एस्टर बन सकता है. तो अगर आप एस्टर को ब्रेक डाउन करते हो तो आपके पास वापस से कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल बनता है. यहाँ पर भी सेम सिचुएशन होगी. अगर आप इसको तोड़ोगे तो यहाँ पर भी वही दो मॉलिक्यूल वापस से बन जाएंगे, वही दो मॉलिक्यूल आपस में वापस से बन जाएंगे, ठीक है? तो फॉर सपोज अगर मैं एस्टर को तोड़ के दिखाऊं या मैं इसी को तोड़ के दिखाऊं, फॉर सपोज अगर आपके पास एस्टर था इन योर ओ लेवल्स और इन योर AS एज वेल, तो ये एस्टर था आपके पास, दिस इज एस्टर लिंकेज. तो अगर मैं इसको तोड़ता हूं तो वापस से आपके पास अल्कोहल और वापस से आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है, ठीक है ना? सेम एज इट इज अगर आपके पास क्या है, अगर आपके पास दिस इज एमाइड, आपके पास क्या है? ये एमाइड है. तो अगर आप एमाइड को भी तोड़ते हैं तो वापस से ये वाला रिएक्शन और वापस से ये वाला रिएक्शन बन जाएगा. यू जस्ट नीड टू कीप रिमेंबर कि जो NH वाला जो स्पेशी है वो वापस से H गेन करेगा, क्योंकि आपको पता है कि ये H ही देता है, ठीक है ना? और ये वाला जो स्पेशी है ये अपना क्लोराइड गेन कर लेगा वापस से, ठीक है भाई? तो ये बन जाएगा और आपके पास ये बन जाएगा, ठीक है? बट द प्रॉब्लम इन हाइड्रोलिसिस, जब आपके पास हाइड्रोलिसिस हो रही होती है तो फिर ये हाइड्रोलिसिस होती है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर. तो आपको याद रखना है कि यहाँ क्लोराइड की जगह पर आपको लगाना होगा OH. यहाँ अब कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, एसाइल क्लोराइड नहीं बन सकता क्योंकि वाटर की प्रेजेंस में आप तोड़ रहे हैं. तो वाटर में H और OH होता है, क्लोराइड नहीं होता. तो क्लोराइड नहीं लगेगा वापसी में, अब जब बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ OH लगेगा. हाइड्रोलिसिस आपने डेफिनेटली AS में पढ़ी होगी, तो आपको याद होगा कि हाइड्रोलिसिस एसिडिक भी होती है और अल्कलाइन भी होती है.
हाइड्रोलिसिस आप एक्वस डाइल्यूट HCl भी यूज कर सकते हैं, आप एक्वस KOH भी यूज करते हैं, ठीक है ना। ये पानी के प्रेजेंस में होती है, इसलिए हमारे पास पानी का कंटेंट होना चाहिए। यू जस्ट नीड टू कीप रिमेंबर कि ये अमाइन जो होते हैं, अमाइन आपके पास अल्कलाइन होते हैं, और ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं ये आपके पास एसिडिक होते हैं। तो इफ यू आर यूजिंग एसिडिक कंडीशन तो ये सॉल्ट बना लेगा, इफ यू आर यूजिंग अल्कलाइन कंडीशन तो ये सॉल्ट बना लेगा। तो ये एक चीज है जो कि आपको याद होनी चाहिए। फॉर सपोज आपके पास क्या है, आपके पास है CH3CONH CH3, ठीक है ना। अगर आप इसको तोड़ ले हो in the presence of dilute hydrochloric acid, so you need to keep remember ये टूटेगा। एक चीज क्या बनेगी आपके पास CH3NH2, और एक चीज आपके पास क्या बनेगी CH3COOH। यही बनेगा बच्चों। यस सर। बस आपको ये याद रखना है कि ये आपके पास बेसिक है, तो जब एसिड और बेस आपस में मिलेंगे तो इसका सॉल्ट बनेगा, और इसका जो सॉल्ट बनता है वो कैसे बनता है, पॉजिटिव सॉल्ट बनेगा इसका, ठीक है। बस ये आपने याद रखना है, ये सॉल्ट बन जाएगा। और अगर फॉर सपोज आप यही रिएक्शन एल्कली के साथ कर रहे हो, अगर आप यही रिएक्शन एल्कली के साथ कर रहे हो, फॉर सपोज आप लोग यूज कर रहे हो एक्वस KOH, ठीक है, तो दोबारा से वही होगा, यही बॉन्ड टूटेगा, आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड और आपके पास अमाइन ही बनेगा। बट क्योंकि आप अल्कलाइन कंडीशन यूज कर रहे हो तो ये एसिडिक है, ये दोनों आपस में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करेंगे और फिर इसका सॉल्ट बनेगा। इट शुड बी इन नेगेटिव CH3COO, ठीक है ना। ये वाले कुछ नहीं होगा फिर। बस ये दोनों चीजें आपने याद रखनी है बच्चों। इज दैट क्लियर? जी यस सर। सर। एनी प्रॉब्लम? नहीं सर। नो सर। तो ये हाइड्रोलिसिस है, ये आपको याद रखनी है। उसके अलावा आप लोगों को ये भी तरीका पता है एमाइड बनाने का ऑलरेडी, अभी ये हम लास्ट क्लास में भी इससे पहले भी पढ़ चुके हैं कि अगर आपके पास क्या हो, अगर आपके पास ये वाला आपके पास क्या हो, फॉर सपोज C डबल बॉन्ड O और NH2, ये एमाइड है। तो अगर आप इसको एमाइन में कन्वर्ट करना चाहें, इस एमाइड को अगर आप एमाइन में कन्वर्ट करना चाहें तो ये कन्वर्जन भी आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आप इसको क्या कर दोगे, रिड्यूस कर दोगे, और रिड्यूस करने के लिए आप यूज करोगे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इन ड्राई ईथर। तो आप इसको यूज करोगे तो आपके पास क्या होगा, ये जो कार्बन है यहाँ पर ऊपर नीचे हाइड्रोजन लग जाएगा, जस्ट दिस वन। तो ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो पीछे वाले में, तो मैं इसको फर्दर डिस्क्राइब नहीं कर रहा, ठीक है बच्चों। यस सर। अच्छा देखिए, नॉर्मली अगर आप हीटिंग से किसी एमाइड को या आप किसी भी फॉर सपोज एस्टर लिंकेज को तोड़ते हैं तो वो टूट जाता है डेफिनेटली, लेकिन जब आप उसको कंडीशंस देते हैं एसिडिक और अल्कलाइन कंडीशन, तो ड्यू टू द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन टेक प्लेस ओवर देयर, इट वुड बी अ फास्टर रिएक्शन, ठीक है ना। तो सॉल्ट की फॉर्मेशन जैसे थोड़ा फास्टर रिएक्शन हो जाता है, तो इस वजह से आपने यहाँ पर कंडीशंस प्रोवाइड करनी होती है एसिडिक या अल्कलाइन, ठीक है। फिलहाल आप इसको नोट डाउन कर लो अपने पास। सही है। If we talk about acyl chlorides, acid derivatives, तो ये क्या होते हैं बच्चों? Acyl chlorides are when you have carbon, double bond, oxygen and chlorine, और ये कनेक्टेड हो किससे, कार्बन चेन से, तो इसको आप बोलते हो acyl chloride, इसको आप बोलते हो acyl chloride, and it behave like a carboxylic acid, a lot of resemblance with carboxylic acid, but esters और amides आप carboxylic acid से बनाते हो, इससे भी बन सकते हैं। बस ये फर्क है कि कार्बोक्सिलिक एसिड से थोड़ा स्लो रिएक्शन होगा, इससे रिएक्शन फास्टर होगा। एज कंपेयर टू कार्बोक्सिलिक एसिड, द रिएक्शन इन एसाइल क्लोराइड्स आर फास्टर, ठीक है ना। अगर आप इसी वो कार्बोक्सिलिक एसिड की जगह इसको यूज करोगे तो रिएक्शन थोड़ा सा फास्टर होगा, ठीक है बच्चों। यस। अब ये बनता कैसे है, फॉर्मेशन ऑफ एसाइल क्लोराइड। अब अगर हम बात करें फॉर्मेशन ऑफ एसाइल क्लोराइड, so you need to remember this, आपको ये पता होना चाहिए कि ये कैसे बनता है, क्योंकि ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, आपने AS में भी इसको पढ़ा था। आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड को आप किससे ट्रीट करा दोगे बच्चों, अगर आप इसको PCl5 से ट्रीट कराओ रूम टेम्परेचर प्रेशर पे, सो इट ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड इनटू एसाइल क्लोराइड। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, ये एसाइल क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगा। Is that clear, every one of you? And I think you all remember this, that this is actually the test for hydroxyl. This is actually known as test for hydroxyl. ये test for hydroxyl के लिए मशहूर है,
जहां पर भी OH आपको नजर आए आप PCl5 डाल दो तो यहाँ HCl बनेगा और इसका ऑब्जर्वेशन होगा स्टीमी फ्यूम्स। इसका ऑब्जर्वेशन होगा स्टीमी फ्यूम्स। तो मेरे ख्याल से ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये OAS का पार्ट है, ठीक है ना। और यू कैन इवन यूज अल्टरनेटिव ओवर देयर, लेकिन वो टेस्ट नहीं होंगे। अल्टरनेट आप यूज कर सकते हो PCl3, ठीक है ना। और अगर आपके पास ये ना हो तो आप SOCl2 भी यूज कर सकते हो। तो ये ऑल्टरनेटिव्स हैं, आप इनको भी यूज कर सकते हो। और अगर आपके पास बच्चों क्या हो, अगर आपके पास बेंजोइक एसिड हो, फॉर सपोज बेंजीन है, बेंजीन के साथ क्या लगा हुआ है आपके पास, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अगर ये आपके पास है तो आप इसको भी PCl5 से या PCl3 से ट्रीट कर सकते हो। तो ये बेंजोइक एसिड आपके पास बेंजोइल क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगा, which is one of the acyl chloride. This is benzoyl chloride and this is benzoic acid. Right, बच्चों? This is the way of formation of acyl chloride. Right? Yes, sir. Then if you talk about further in this situation of acyl chloride, so just look at over there. If you talk about this one, this is carbon and oxygen double bond, and this is a single bond with chlorine. So actually chlorine is partial negative because it is more electronegative, and also oxygen is also electronegative, and over here carbon is electropositive. Right, so you need to keep remember a few things over here. Highly reactive acyl chloride, actually they are not like this. You can say that in higher conditions, like you can say that they can easily attack by nucleophile. Even in cold water they can hydrolyze like this, for suppose, क्योंकि यहाँ पर आपके पास जो partial charges है ना, ये बहुत 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 strong है. So you can say that they can easily attacked by nucleophile, can easily attacked by nucleophiles, क्योंकि इनके पास पोलैरिटी बहुत है, ठीक है ना. तो इजीली ये अटैक हो जाते हैं. इवन यू कैन से दैट के ये हाइड्रोलाइज हो जाते हैं ठंडे पानी में. यू कैन से दैट कोल्ड वाटर कैन हाइड्रोलाइज दैट. क्या बात हुई है? ये बात ऐसे हुई जैसे फॉर सपोज आपके पास क्या है, आपके पास है CH3 C डबल बॉन्ड OCl, राइट. लाइक आपके पास ये चीज है, आप इसको ठंडे पानी में डालोगे, क्या होगा, ये खुद ब खुद कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड. ये खुद ब खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों? कार्बोक्सिलिक एसिड में. सो इट इज टेलिंग यू दैट हाउ रिएक्टिव इज दिस, कितना रिएक्टिव है. कैन से दैट हाईली रिएक्टिव. They are highly reactive, right बच्चों? They are highly reactive. जी. You don't need, or you can say we don't require higher conditions for this reaction. You can simply react because it is highly reactive. Okay बच्चों? सही है सर. And if you talk about the reactivity, so you need to keep remember that acyl chloride is the higher or highly reactive. It is highly reactive. It's highly reactive. और फिर थोड़ा सा कम रिएक्टिविटी में कौन होगा? थोड़ा सा कम रिएक्टिविटी में आपके पास हैलोजिनो अल्केन्स होंगे. थोड़े से कम होंगे हैलोजिनो अल्केन, इससे थोड़े से कम होंगे हैलोजिनो अल्केन्स. कोई सा भी हैलोजिनो अल्केन इससे थोड़ा सा कम आप कह लें कि रिएक्टिव होगा. सही है. और उससे भी कम आपके पास कौन रिएक्टिव होगा? उससे भी कम आपके पास रिएक्टिव होगा क्लोरो एरीन्स. उससे भी कम कौन होगा आपके पास? क्लोरो एरीन्स. ये उससे भी कम रिएक्टिव होगा. तो यू कैन से दैट हाईली रिएक्टिव एंड लीस्ट रिएक्टिव. सही है भाई?
Then after this, I think you all remember this reaction as well in your AS, that if you have any halogen alkane, and if you are reacting in the presence of hydroxide, you will see this, that this hydroxide actually replaces halogens, right? And this is what? This is nucleophilic substitution reaction, right? This is nucleophilic substitution reaction, right, bacho? जी I सर think you'll remember this. And for this, you need to use what? NaOH or KOH, whatever, in aqueous conditions, right? Any one of them in aqueous conditions. So if you have CH3Cl, and if you are adding NaOH over there, aqueous, so it can easily substitute chlorine by OH, right, bacho? Yes, sir. So this is a reaction, you can say that कि इसके लिए ये reaction हो सकता है easily, or you need to keep remember the same reason for phenol and phenylamines as well, right? अगर आपको याद रखना है, with water acyl chloride can hydrolyze, with NaOH acyl chloride and halogen alkanes both can hydrolyze, right? Yes, sir. फिर अगर आप बोले with water बोलेंगे आप, तो only एसाइल क्लोराइड आपके पास क्या होगा? हाइड्रोलाइज होगा। अगर आप विद NaOH बोलेंगे तो आपके पास हैलोजिनो अल्केन भी, और आपके पास हैलोजिनो अल्केन के साथ साथ आपके पास एसाइल क्लोराइड तो होगा ही, क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव है, ठीक है। लेकिन आप देखें क्लोरो एरीन्स कहीं पर भी हाइड्रोलाइज नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि वो बहुत पीस रिएक्टिव है, ठीक है बच्चों। Yes, sir. सही है सर Now, the one which is more important is nucleophilic attack, right? The one which is more important is nucleophilic attack. If you talk about nucleophilic attack, so here we have one chemical property over here. We need to talk about this. For suppose we have what? We have any acyl chloride. If we just reacted with hydroxide, so you will see this, that it could be converted into this, right? It could be converted into this, right? And we need to see the mechanism for this. The mechanism is important for this, the mechanism. So let's see, bacho. We have this acyl chloride, right? Yes, sir. This is partial positive, right? This is partial negative, right? For suppose you have any nucleophile over there. If you have any nucleophile over there, you need to keep remember that this nucleophile attack on carbon, right? This nucleophile attack on carbon and the double bond breaks. ये डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा? आपके पास ब्रेक हो जाएगा, सही है। So you will see this कि होगा कि आपके पास ये हुआ कि जो R था वो अपनी जगह पर है, कार्बन अपनी जगह पर है, ये जो डबल बॉन्ड था ये टूट गया ऑक्सीजन के साथ, ये क्लोरीन अपनी जगह पर है, बट यहाँ न्यूक्लियोफाइल आपके पास क्या हो गया? अटैच हो गया, ठीक है। और ये बॉन्ड टूटने की वजह से दोनों इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास चले गए, तो ये नेगेटिव हो गया, राइट बच्चों? Yes, sir. Any problem? No, sir. नहीं सर This is first step. This is first step. In the second step, you will see that. In the second step, you will see that होगा क्या हमारे पास? ये जो आपके पास स्ट्रक्चर बना हुआ था, R अपनी जगह पर है, कार्बन अपनी जगह पर है, ऑक्सीजन अपनी जगह पर है, लोन पेयर अपनी जगह पर है, क्लोराइड अपनी जगह पर है, न्यूक्लियोफाइल अपनी जगह पर है,
होगा क्या, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये वापस से बॉन्ड बनाएंगे यहाँ पर, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये वापस से डबल बॉन्ड यहाँ बनाएंगे और ये जो क्लोरीन वाला बॉन्ड है ये टूट जाएगा। इन दिस वे यू विल सी दिस कि आपके पास कार्बन अपनी जगह रहेगा, न्यूक्लियोफाइल अपनी जगह पर रहेगा, आर अपनी जगह पर रहेगा, ये डबल बॉन्ड वापस से बन जाएगा और ये क्लोरीन आपके पास यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है भाई, ठीक है बच्चों। Yes, sir. This is what? This is addition. This is addition of nucleophile and this is elimination of chlorine. So you can say that this is addition elimination reaction. अगर आपसे टाइप पूछी जाए रिएक्शन की तो आप कह सकते हैं this is addition elimination reaction. This is addition elimination reaction. Right बच्चों? सही Yes, है sir. सर। Any problem? No, sir. क्लियर है Let's सर। see the one example for this. Let's see one example for this. For suppose we have what? We have CH3, C double bond O, Cl. We have this one, right? Right? Yes, sir. For suppose we have water molecule. You can see this. This is a water molecule and a water molecule having two lone pair of electrons, right? होता क्या है? For suppose this lone pair attack the partial positive carbon like this and this bond breaks. तो अगले स्टेप पे आप क्या देखोगे? अगले स्टेप पे आप देखोगे कि आपके पास कार्बन पर क्या अटैच हो गया? कार्बन पर OH अटैच हो गया, ठीक है? क्योंकि डेफिनेटली ये OH जाएगा तो ये बॉन्ड भी टूटेगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड टूटने के बाद ऑक्सीजन के पास दोनों इलेक्ट्रॉन चलेगा, ये नेगेटिव हो गया, ये CH3 अपनी जगह पर है, ये क्लोरीन अपनी जगह पर है, राइट बच्चों? Yes. होगा क्या अगले स्टेप में, ये बॉन्ड वापस से बनेगा और ये बॉन्ड टूट जाएगा। इन दिस वे यू विल सी दिस कि आपके पास CH3 C डबल बॉन्ड O और OH बन जाएगा along with chloride, right? So this is what? This is addition elimination reaction. ठीक है बच्चों? Yes, sir. This is addition elimination reaction. For suppose मेरे पास पानी नहीं था, मेरे पास अल्कोहल था. This is example number 1. ये था किसके साथ? पानी के साथ, ठीक है ना? For suppose example number 2 मेरे पास पानी नहीं था, मेरे पास अल्कोहल था. For suppose मेरे पास पानी नहीं था, मेरे पास अल्कोहल था. तो just look at over there. This is CH3 C double bond O Cl और मेरे पास क्या था? मेरे पास अल्कोहल था OH CH3, ये वाला अल्कोहल था मेरे पास, ठीक है ना? So you will see this कि होगा क्या आपके पास कि ये जो ऑक्सीजन है ये पार्शियल पॉजिटिव कार्बन पर क्या करेगा? अटैक करेगा एंड दिस बॉन्ड ब्रेक्स. तो इस तरह से क्या होगा आपके पास? इस तरह से आपके पास ये CH3 C ये बॉन्ड टूट जाएगा, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर आ जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा और यहाँ पर आपके पास क्या अटैच हो जाएगा? O अटैच हो जाएगा और इस O के साथ CH3 अटैच रहेगा. यहाँ जो बॉन्ड था ना आपके पास O और H का, ये टूट जाएगा, ठीक है? ये भी टूट जाएगा, ठीक है भाई? और यहाँ पर क्लोरीन अपनी जगह पर मौजूद है. अगले स्टेप में क्या होगा? डेफिनेटली ये वापस अपनी जगह पर आएगा, ये यहाँ टूट जाएगा, तो आपके पास क्या होगा? आपके पास ये स्ट्रक्चर बन जाएगा CH3 C double bond O, then this O and then CH3. So you can see this. This is with water. So you are having what? Carboxylic acid to form. And this is with alcohol. So you can see this. You will have ester over there. And both are what? Both are addition elimination reaction. In both the cases, you have chloride removed over there. And from here, you can see this, you have H, and over here you have H.
or Cl, so it will form HCl actually, right? And same over here, actually HCl will be formed along with this, right, Bacho? Yes. सही Right, सर sir. Yes, sir. सर बस If ये you are लिख लें if you are using water, so definitely it will produce what? It will produce carboxylic acid. And if you are using what? Alcohol, so it will be producing what? It would be producing ester, right? Sure, you can write this.